کوئی گناہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتا. زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، کم تولنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، سود کھانا ہے، رشوت کا کاروبار کرنا ہے. کوئی گناہ نیکیوں کو نہیں مٹاتا. صرف ایک منحوس گناہ ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی بندے کے دل میں آیا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی ساری نیکیاں مٹا کے رکھ دیا کرتا ہوں. وہ کون سا گناہ ہے؟ زور سے بولو، زور سے. کوئی گناہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتا. صرف ایک گناہ ہے جس کا مرتکب بندہ ہو، اس کے ارتکاب سے بندے کی نیکیاں ساری کیا ہو جائیں گی؟ حبطت اعمالہم. 18 نبیوں کے نام گنے اللہ نے سورۃ انعام میں. کتنے؟ اخیر میں آ کے کہا میں سارے نبیوں کے نام گننے لگ جاؤں تو قرآن تو ناموں سے بھر جائے، تو میں ایک اصول بیان کر دیتا ہوں. وَمِنْ آبَائِهِمْ، جو نہیں نہ گنے ان میں سے کچھ ان 18 کے باپ دادا تھے. وَإِخْوَانِهِمْ، کچھ ان 18 کے بھائی تھے. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، کچھ ان 18 کی اولاد تھے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان نبیوں کو منتخب کیا تھا. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی تھی الی صراط مستقیم. سارے نبیوں کو سیدھے رستے پہ چلایا تھا. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، لا فرضیہ ہو نہیں سکتا بالفرض والمحال. 1 منٹ کے لیے مان لو اگر یہ نبی شرک کرتے، نبی سے تو صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا. کبھی کبیرہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا. اللہ کا نبی رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اللہ بچاتا ہے اس نبی کو. نبی کا دامن ہر قسم کے عیب اور داغوں سے پاک ہوتا ہے. اسی لیے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کرنے آئے تو پہلے کہا میری 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ چیلنج کر دیا میرے نبی نے. اور قوم کہتی ہے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا. نبی تو صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا. چہ جائے کہ شرک اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ. زنا جو ہے یہ ظلم ہے، چوری ظلم ہے، ڈاکہ ظلم ہے، کسی کو قتل کرنا ظلم ہے، کسی پر بہتان باندھنا ظلم ہے، کم تولنا ظلم ہے، ملاوٹ کرنا ظلم ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچنا ظلم ہے. یہ سارے ظلم ہیں. شرک صرف ظلم نہیں ہے. جب شرک کی باری آئی تو کہا ان الشرک لظلم عظیم. باقی سارے ظلم ہیں، یہ صرف ظلم نہیں، یہ ظلم ہے. کچھ عربی کے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں اور معنی میں ہوتے ہیں، عربی میں اور معنی. عربی کا لفظ ہے اردو میں آگے. ہمارے یہاں ظلم نہیں ہے، ہمارے یہاں ظلم کا لفظ نہیں ہے. عربی میں ظلم اسے نہیں کہتے جو اردو میں. حکمت کا لفظ، حکمت سے بات کرنی چاہیے. قرآن نے بھی حکمت کا لفظ بولا. ایک عربی میں حکمت ہے، وہی حکمت اردو میں استعمال ہو گئی. دونوں میں معنی کیا ہے؟ الگ الگ. اردو میں ہوگا تو کیا معنی ہوگا؟ سپ بھی مر جائے. حکمت نال گل کرو. یہ جو ابھی
मौलाना फरमा रहे थे, नरमी का आपको दावत दे रहे थे कि नरम लहजा होना चाहिए, बात हिकमत से किया कर। एक बादशाह को ख्वाब है, मेरे मुंह के सारे दांत गिर में। उसने सुबह मुअब्बिरीन को बुलाया, ताबीर दो। एक मुअब्बिर ने कहा, तेरे सारे खानदान के लोग तेरे सामने मरेंगे। उसने जल्लाद को कहा, इसकी गर्दन कलम कर दो, ए मेरे सारे खानदान नू मारू हुए, कत्ल कर दो। दूसरे मुअब्बिर को बुलाया, इधर आ। वो पहले की हालत देख चुका था। उसने कहा, जनाब आपकी उम्र बड़ी लंबी होगी, आप सब खानदान वालों के बाद मरेंगे। है कोई फर्क? लेकिन इसने बात हिकमत से की, बात हिकमत से। कुछ लफ्ज अरबी के हमारे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। जुल्म उर्दू में किस माने में? किसी गरीब का पंजा मरोड़ देना, किसी गरीब को मकान से बेदखल कर देना, किसी गरीब के मकान पे कब्जा कर लेना, यह जुल्म है। अरबी में जुल्म क्या है? वज़ु शै फी गैर महल्ली ही, चीज को अपनी जगह पे न रखना। जो जगह उस चीज के लिए बनी है ना, उस जगह उस चीज को न रखना, ऐसी जगह पे रखना जो चीज उसके मुनासिब, जो जगह उस चीज के मुनासिब हो। ये क्या है? चीज को अपनी जगह पे न रखना। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। अलिफ नु किल्ली समझने वाला जट भी समझ है तो ये मुश्किल काम। जिस मस्जिद में मैं जुमा पढ़ाता हूं, उससे 4-5 मकान परे एक डॉक्टर साहब क्लिनिक का डॉक्टर साहब बैठे। ये मैं फर्जी बयान कर रहा हूं। एक दिन मरीज आ गए बहुत सारे, डॉक्टर साहब नहीं आए। मरीज जो परेशान हुए तो मरीजों ने आपस में मशवरा किया कि डॉक्टर साहब तो आए नहीं, ये बंदियालवी साहब हैं, ये बड़े आलिम हैं, खतीब हैं, आज इन्होंने आखो भाई डॉक्टर दी कुर्सी ते बह के मरीज चेक कर। मैं जब डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ के मरीज चेक करूंगा तो ये उस कुर्सी के साथ क्या होगा? ये है जुल्म। चीज को अपनी जगह, वो जगह मेरी नहीं थी, मेरी जगह थी मिंबर। डॉक्टर की कुर्सी पे अगर आप मुझे बिठाते हैं तो पहले कब्रिस्तान वास्ते जगह खरीदो, तो मैं मरीज चेक करने था। आलिम को वकील की कुर्सी पे बिठाओ, जुल्म है। वकील को इंजीनियर की कुर्सी पे बिठाओ, जुल्म है। इंजीनियर को डॉक्टर की कुर्सी पे बिठाओ, जुल्म है। चीज को अपनी जगह पे न रखना, उस जगह पे रखना जो जगह उस चीज के लायक नहीं, इसको जुल्म कहते हैं। शिर्क जुल्म अजीम है। जो बंदियालवी समझाने में कामयाब हो जाए, अल्लाह की सिफतों वाली चादर, आलिमुल गैब होना, मुख्तारे कुल होना, मुश्किल कुशा होना, हाजत रवा होना, सजदे के लायक होना, नजरो नियाज के लायक होना, वो जो अल्लाह की सिफतों वाली चादर है ना, वो अल्लाह के कांधे पर सजती है। इस चादर को हटा के अगर किसी नबी वली के कांधे पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? वो नबी वली का कांधा उस चादर के लायक नहीं था, वो उसके मुनासिब नहीं था। शिर्क तो जुल्म अजीम है। नबी से तो सगीरा गुनाह भी सरजद नहीं होते, और यहां अल्लाह ने कहा वलऊ अशरकू, अगर मेरे वो नबी शिर्क करते लहाबिता अनहुम मा कानू यामलून, मैं उनकी जिंदगी के सारे अमाल बर्बाद करके रख दे। किन के मुतालिक? ये बिल्कुल उन्हीं ही है जो हमारी पंजाबी में एक मुहावरा है, आँखां धीम
تے سناوا. کہا نبیوں سے اور سمجھانا کس کو مقصود تھا؟ تساں کس باغ دی مولی ہو؟ تم کون ہو؟ نبی جن پر وحی آتی ہے، جن پر میرے سلام اترتے ہیں. پھر ایک اور سورت میں، سورت زمر میں حد ہی ہو گئی، وہاں امام الانبیاء کو خطاب کر لیا اللہ نے. لئن اشرکتا، میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ اعمالوں کا، تو آپ کے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ کوئی گناہ نیکیوں کو نہیں مٹاتا، صرف ایک گناہ ہے جو نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. وہ کون سا گناہ ہے؟ اور سے بولو. جسے ظلم عظیم کہا. اللہ کہتے ہیں حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اساں قیامت والے دیہاڑے ترازو چاہنا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تولنے ہی کوئی نہیں تولنے. مولا تولتے صحیح، یہ زیادتی نہیں. انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا، تولتے صحیح. حاجیوں کو ستو پلاتی ہیں، تولتے صحیح. ہسپتال بنائے، ڈسپنسریاں بنائیاں، کنواں کھدوایا، سرائیں بنائی، غریب بچیوں کی شادیاں کی، تہجد پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، طواف کرتے رہے، تولتے صحیح. اللہ نے فرمایا نہیں. دکاندار ترازو وہاں اٹھاتا ہے، دونوں پلنے چ رکھن واسطے شے ہوئے، ایک پاسے سودا دوے پاسے وٹے، پھر اٹھاتا ہے. اور اگر ایک پلڑے میں سودا ہو دوسرے میں بٹے نہ ہوں تو دکاندار ترکڑی چائی کھلوتا ہوئے، کیا لوگ کہیں گے؟ بے وقوف ہے، دوسرے پلڑے میں شے کوئی نہیں، تو نے ترازو کیوں اٹھایا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے ایک پلڑے میں گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ. نیکیاں شرک نے برباد کر دی تھی، دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں. ہم نے ترازو کیوں قائم کر؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. شرک جو ہے یہ نیکیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر. رائی کے دانے کے برابر شرک آیا نا، نیکیاں کیا ہو گئی؟ ساری نیکیاں ضائع. شرک کیا ہے؟ ابھی مولانا غلام اللہ خان صاحب وہی آیت پڑھ رہے تھے، تھوڑی سی آیت انہوں نے پڑھی. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. علماء بالکل چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں. اے بابو دا ذرا من امتحان لینا، ریڑ کے دے بابو، ان کا مجھے امتحان لینے دو. جن جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، یہ کرنیاں والے ہیں، بھرنیاں والے ہیں، کرما والے ہیں، فضلہ والے ہیں. یہ لجپال ہیں، لجپال. یہ جھولیاں بھرنے والے ہیں، یہ داتا ہیں، داتا ہیں، چھپر پھاڑ کے دینے والے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ ایک کھجور کے دانے کے بھی مالک نہیں. بے شک آنکھوں جنہوں سمجھ آئیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ جی واہ. قطمیر کا معنی کھجور ہوتا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کا امتحان لیا ہے. قطمیر کا معنی کھجور ہوتا ہے؟ قطمیر کا معنی گٹھلی ہوتا ہے؟ اوے لاگو، قطمیر کہتی ہیں اس پردے کو جو گٹھلی کے اوپر ہے. رمضان شریف آ رہا ہے، کھجوریں آپ کھائیں گے. رمضان شریف میں بندہ روزہ افطار کروائے نا کسی کا، یہ نہیں غریب کا، نا یہ نہیں کہا میرے آقا نے بے غریب مسکین کا، نا کسی کا.
जितना रोजे दार को अल्लाह सवाब देगा ना, उतना ही सवाब रोजा खुलवाने वाले को देगा। आगे बताऊं, सुनो। और ये रोजा इफ्तार करवाना उस बंदे के लिए जहन्नम से आजादी का सबब बन जाएगा। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह, हम में हर बंदा तो तौफीक नहीं रखता रोजे खुलवाने की, हर बंदा तो तौफीक, हर बंदे के पास पैसा हो, दौलत हो, फ्रूट भी हो, फ्रूट चाट भी हो, ते पाकिस्तानियों दे वास्ते पकौड़े, ये इफ्तारी का जुज़वे ला यनफक, ए ना हो ते इफ्तारी होंदी नहीं उन्हें, समोसे पकौड़े, उसके पास ताकत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया चाहे रोजा खुलवाए खजूर के एक दाने से और लस्सी के एक घूंट से, लस्सी के एक घूंट से या एक खजूर से रोजा इफ्तार करवाए, अल्लाह उसको भी इतना ही सवाब अता करे। कितमीर कहते हैं उस पर्दे को जो खजूर की गुठली के ऊपर रब ने चढ़ाया। अल्लाह ने फरमाया जिनको तू मुश्किल कुशा हाजत रवा समझता है ना, वो खजूर की गुठली पर जो बारीक सा पर्दा है ना, उसके भी मालिक कोई नहीं। अल्लाह भी मुशरकां दे पल्ले कख नहीं छोड़े, खुदा दी कसम कख नहीं छोड़े। मिसाल किसके साथ दी अल्लाह ने? गुठली के ऊपर बारीक सा, कितने का होता है? शाबाश रेड़ के आले, कितने का होता है? मैं 50,000 पर्दे इस रमजान में इकट्ठे कर लेता हूं, तुसी उठो तो मेरे नाल सौदा करो, 50 रुपए दे लो, उठो। मैं लाख पर्दे इकट्ठे करना, 50 रुपए दे लो, 50 दे। बंदियालवी जो आगे बात करने वाला है ना, कम उलमा करेंगे। मौला एडी निकम्मी शे, एडी हकीर शे, लाख पर्दे इकट्ठे करिए, 50 रुपए दे न विकन, तू गुठली ते चढ़ाया क्यों? ए निकम्मी शे चढ़ाई क्यों? अल्लाह ने फरमाया मैंने गुठली पे ये पर्दा इसलिए चढ़ाया ताकि जो गुठली की खटास है ना, वो खजूर की मिठास की तरफ न चली जाए। हमने उस खटास को रोका, मिठास इधर ना आए, मिठास गुठली की तरफ ना आए, गुठली की खटास खजूर की मिठास की तरफ ना जाए। ये पर्दा इसलिए चढ़ाया। रेड़का के लोगों, कितने लोग बंदियालवी के इशारे को समझ पाएंगे? ये पर्दा इसलिए चढ़ाया ऊपर वाली चीज नीचे ना आए, नीचे वाली चीज ऊपर न जाए। अरबी में इसी पर्दे को बरज़ख कहते हैं। नारे तकबीर, जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह, अल्लामा मौलाना अताउल्लाह बनियालवी साहब। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो दरियाओं को मिला के चलाया, एक का पानी मीठा, एक का पानी कड़वा। बैनहुमा बरज़खुन, उन दोनों के दरमियान बरज़ख है, बरज़ख। मौला ये बरज़ख क्या करता है? इद्दू दा पानी इद्दे ना आवे, इद्दू दा पानी उद्दे ना जावे। मरने के बाद जो जमाना है ना, उसका नाम भी बरज़ख है। इद्दू दी चीज उद्दे ना जावे थे, उद्दू दी रूह इद्दे ना आवे, इसको बरज़ख कहते हैं। मा यमलिकून मिन कितमीरिन, तुसी थक गए हो,
आधा घंटा होया नहीं। मा यमलिकूना मिन कितमीरिन, मौला कहना तो ये चाहता है ना, मा यमलिकूना मिन शय्इन, मा यमलिकूना मिन जर्रतिन, वो किसी जर्रे के मालिक नहीं। एडा लंबा चक्कर लाए, खजूर, गुठली, पर्दा, फरमाया हां खजूर को समझ कब्र की तरह, गुठली को समझ मय्यत की तरह, पर्दे को समझ कफन की तरह। मेरे सिवा जिनको तू पुकारता फिरता है ओ ते अपने कफना दे मालिक भी कोई नहीं। हाजत रवा मुश्किल कुशा, मसला के हक जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह, अल्लामा अताउल्लाह बनेलवी साहब। बाहर भी नहीं सुनते। कब्र तो फिर तो छुप गए ना, उते मिट्टी आ गई, पड़ियां आ गई, बाहर भी नहीं सुनते। इस दुनिया से चला गया, कोई आवाज सुनने की, कोई आवाज नहीं सुन सकता। ये हमारा मसलक है, इशाअत तौहीद का मसलक है। इस दुनिया से जाने वाला कोई हो, जब इस दुनिया से चला गया, ना दुनिया का कलाम सुनता है, ना पैगाम सुनता है, ना सलाम सुनता है। बंदयालवी आज एक बात कहना चाहता, लेकिन रेड़के वालों से उम्मीद करूंगा मेरे इशारे को समझे, मेरे इशारे को समझे। आपकी मुस्कुराहट बताएगी, सुभान अल्लाह बताए। हम कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते, हमारे दोस्त कहते हैं सुनते हैं। वो कहते सुनते हैं, मर के उन्ना भी नहीं वेख्या। क्या उनका तजर्बा हो कि हमने मर के देखा है, हम सुनते रहे, मर के असा भी नहीं वेख्या। कि हमारा तजर्बा हो, हम मर गए थे, हमने नहीं सुना। जो कहती हैं सुनती हैं, मर के उन्ना नहीं वेख्या। जो कहती हैं नहीं सुनते, मर के उन्ना भी नहीं वेख्या। जिसने 100 साल मर के देखा था वो कहता है कि मुर्दे नहीं सुनते। हर हाल विच मुर्दे, हर हाल विच मुर्दे। मैंने किसका जिक्र किया? शाबाश शाबाश शाबाश। किसका जिक्र किया? हजरत उज़ैर का। 100 साल जमीन के ऊपर रहे, दुनिया वाली, दुनिया की कोई आवाज उन्होंने, इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, जिनको तुम पुकारते हो इस नजरिए से कि वो हमारी पुकारे सुनती हैं। कुरान ने इस आयत के आखिर में कहा व यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का क्या कर देंगे? किसको शिर्क कहा है कुरान ने? कि जो अल्लाह के सिवा औरों को पुकारते हैं, मालिक को मुख्तार समझ कर के वो हमारी पुकार को सुन रहे हैं। आयत के आखिर में उसे क्या करार दिया? व यौमल क़ियामत यकफुरूना। मैं अहले सुन्नत व जमात में से हूं, उलमाए देवबंद से ताल्लुक। कुरान मैंने पेश कर दी, आका का फरमान पेश करना चाहता। मामला नूरुन अला नूर हो, सोने पे सुहागा। कुरान भी मेरे आका का फरमान। एक बंदा आया, उसने आके कहा, नबी पाक को खिताब किया, माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा और जो मोहम्मद चाहेंगे सल्लल्लाहु। जोर से पढ़ो। जब नबी पाक का नाम आए तो क्या पढ़ना है? ज़बाने बेख्तियार कहें, ज़बाने बेख्तियार पढ़े सल्लल्लाहु।
अटक गई है कहीं जबान, थोड़ी जी घिस गई है। अजर पता है, जन्नत में 10 दर्जे बुलंद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जन्नत के 2 दर्जे इस तरह 12 फुट, 14 फुट, 16 फुट। जन्नत के 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला जितना जमीन से आसमान। एक दफा दरूद पढ़े तो कितने दर्जे बुलंद? 10 गुनाह खत्म, 10 नेकियां मालनामे में लिखी गई। बंदे आलवी कई बातें ऐसी कर जाता है जो दूसरे उलमा नहीं करते। कोई अमल ऐसा नहीं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नफल, तिलावत, तहज्जुद, खैरात, सदका, तस्बीह, कोई अमल बंदे का ऐसा नहीं जिसमें बंदे को यकीन हो कि ये मकबूल हो गया है, ये रद्द नहीं हुआ। कोई अमल ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे आका पे दरूद पढ़ना ऐसा अमल है जो कभी ना मकबूल नहीं होता, हमेशा ही कबूल होता है। ये वाहिद अमल है, इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। अपने जिक्र के साथ जब असर के बाद रमजान में बार बार अल्लाह, दुरूद इब्राहिमी, कौन सा दुरूद? अफजल दुरूद कौन सा है? ये कभी रद्द नहीं होता, कभी ना मकबूल नहीं होता। बंदियालवी कौन होता है कहने वाला? बंदियालवी कुरान से साबित कर देता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। युसल्लून मुजारे का सीगा है, इस्तिमरार और दवाम का माना पाया जाता है। क्या माना करेंगे? अल्लाह ने रहमत भेजी नहीं, अल्लाह रहमत भेज रहा है नहीं। माना करेंगे 24 घंटों में कोई लहजा, सेकंड ऐसा खाली नहीं जाता जिस लहजे में मेरा रब मेरे नबी पे रहमत ना भेज रहा हो। हर वक्त रहमत उतर रही है, हर वक्त रहमत उतर रही है। इधर हमने भी दरखास्त कर दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद पर। और उधर तो हर वक्त रहमत उतर रही है, तेरी दुआ भी कबूल हो। ये कभी मरदूद नहीं होती, हमेशा ही कबूल होती। तो जब नबी पाक का नाम आए, और से पढ़ो, जिस मस्जिद में आप जुमा पढ़ते हैं, खतीब साहब नबी पाक का नाम लें तो आपकी ज़बानें बेख्तियार कह उठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण मन याद कराओ, मैं आखना की चाहता था। हाँ? उसने कहा माशा अल्लाह हो व माशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह चाहेगा, जो मोहम्मद। सच्ची सच्ची दसो, मुआशरे च नजर दौड़ाओ, ये लफज आज लबदे कि नहीं लबदे? सुनते रहते हो कि नहीं सुनते रहते हो? ट्रकों की पेशानियों पर नहीं होते? जब कोई बंदे रुखसत करते हैं, अल्लाह ताला दे नबी दे हवाले, अल्लाह ताला दा नबी खैर करेगा, नहीं सुनते हो? ये लफज नहीं बोले जाते, ये हमारे मुआशरे में ये लफज आम बोले जाते हैं। सुनो, उसने कहा माशा अल्लाह हो व माशा मोहम्मद। मेरे नबी ने खुतबा दिया, आपने फरमाया ये जुमला कह के, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, तूने मुझे अल्लाह का शरीक बनाया। मेरे नबी ने इस जुमले को शिरकिया जुमला कहा, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, तूने ये जुमला कह के मुझे अल्लाह का शरीक बनाया। फिर जो मेरे नबी ने फरमाया, बंदे आलवी उसका तर्जुमा नहीं करेगा, रेड़के के लोगों पे एतमाद करेगा। बोलो, कहो कहो, करो एतमाद। वो कोई चुप कर गए हो यार। अरबी मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, आपका फरमान पढ़ूंगा, लेकिन इतना आसान है और मेरे इशारे आप देखेंगे, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे।
तर्जमा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा यार, मजा नहीं आएगा। मेरे नबी की जबान से जो अदा हुई लफज, वही लफज बंदयालवी पढ़ने लगा है। इशारा मेरा देखो, आप समझ जाएंगे। आपने फरमाया आज के बाद कोई बंदा ना कहे माशा अल्लाह हो व माशा मोहम्मद, बल कूलू, बल्कि कहो माशा अल्लाह हो वहदहू। और हुण ते समझ आ गई तो उनके को नहीं आई। माशा अल्लाह होगा वही जो अल्लाह अकेला चाहेगा। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, किसी के इरादे बांधने से कुछ नहीं होता। तुसी ऐसे वास्ते जलसा रखे आए बेरामदे च करना, उथे करना। स्टेज सजेगा, स्टेज बनाएंगे, ट्यूबें लगाएंगे, क्या कुछ सोचा और उसने क्या सोचा। फिर मर्जी किसकी पूरी हुई? किसी की मर्जी पूरी नहीं होती, होता वही है जो कौन चाहता है। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। दोगे सवाल के जवाब? पूछूं आपसे सवाल? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ घबराए बैठे हो मता सन सवाल दा, जिस तरह कितमीर च मार खा गए हो तो कि दूई ना पै जाए। नहीं पड़ती दूसरी। ये बड़ा आसान सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, बिल्कुल आसान सवाल कर रहा हूं, जवाब आपने देना है। हजरत नूह चाहते थे कि बेटा गरक हो जाए। शाबाश शाबाश। क्या चाहते थे और वो क्या चाहता था? फिर किसका चाहना पूरा हुआ? हजरत इब्राहिम चाहते थे इस्माइल की गर्दन पे छुरी न चले। हजरत इब्राहिम चाहते थे बेटे के गर्दन पे छुरी न चले, और वो क्या चाहता था? तो फिर किसकी चाहत पूरी हुई? असहाबे काफ गार में आए थे, 309 साल सोएंगे, 309 साल सोएंगे। यही इरादा था ना, यही इरादा था ना। और उसका इरादा क्या था? किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो कौन चाहता है। कभी कभी मेरी सारी जिंदगी सफरों में गुजर गई। मेरी खिताबती जिंदगी को तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गई। मेरी खिताबती जिंदगी, सारी जिंदगी सफरों में गुजर गई। रात को सफर करना, आगे जो शाहजोर जा रही होती हैं, ट्रक जा रहे होते हैं, उनके पीछे जो जुमले लिखे हुए होते हैं, कदी कापी ते पेंसिल होवे ना बंदे को, खुदा दी कसम पूरी किताब तैयार है। मैं सोचता हूं भाई इन्ना ते नाजिल कित्थों आंदे, ये जुमले इन पर नाजिल कहां से होते? ऐसे ऐसे जुमले लिखते हैं। हमारे मियाँ वाली में एक शाहजोर के पीछे लिखा गया, ढोला बंसी नहीं तो रोला बंसी, ढोला बंसी नहीं तो रोला बंसी। हमारे रक्षों के पीछे बच्चे लिखवा लेते हैं, मां की बद्दुआ या पुत्र रक्षा चला। बड़े बड़े अजीब अजीब जुमले वो ट्रकों के पीछे लिखते। एक मर्तबा ऐसी सड़क पे आ गए, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे। पहले गियर से गाड़ी ऊपर न जाए, आगे एक ट्रक जा रहा था, उसके पीछे लिखा हुआ था, इत्थे कोई एक मुसीबत है, इत्थे कोई एक मुसीबत है। ये गर्मियां आ रही हैं, ये गोले और कुल्फी बेचने वाले नहीं, बड़े वो शेर लिखते हैं अपनी रेडी पर। नहीं तो मंडी बाउद्दीन जाओ, सरगोदे जाओ, सफेद रंग की रेडी है, उस पर शेर लिखा हुआ है। उसमें कुल्फी वालों ने एक शेर लिखा हुआ है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। अगला पढ़ो मिसरा, शाबाश शाबाश। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। मैं क्या कहता, कुल्फी बेचना नहीं पता,
मिंबरों में रात के वारिस को क्यों पता नहीं चला? ये तो कुल्फी बेचने वाले को भी पता था, होता वही है जो कौन चाहता है। तो मैंने शिर्क आपको समझाया कुरान की एक आयत से और आका के एक फरमान से। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।